Yes, Satpreet. Tides. Yes, we started studying tides. Okay, we were discussing के tides क्या होते हैं. We also discussed that waves and tides are different. And who will tell me what are tides? क्या होते हैं tides? Yes, Krishna. Tides are the water level that grows up and down. Yeah, the rise and fall of water is basically tides. They are different from waves. ठीक है, लहरों से different होते हैं tides. We will be also looking at various images today that will clarify if you have any misconception here. ठीक है. Okay, so why are we studying about tides, or how is this useful to you, or how you can make this as a career? अगर किसी को भी interest है to study tides, to study about ocean, the phenomena that are there in the ocean, the life inside the ocean. तो ऐसे लोग जो पढ़ते हैं इस चीज को, दे आर कॉल्ड मरीन साइंटिस्ट, और इस स्टडी को बोलते हैं ओशियनोग्राफी. ठीक है, ओशियनोग्राफी. सो इट हैज मेनी ब्रांचेस. There is biological oceanographers and marine biologists. There are chemical oceanographers and marine chemists. There is geological oceanographers and marine geologists. And there are physical oceanographers, right? तो जो लोग फिजिकल ओशनोग्राफर्स होते हैं वो टाइड्स, वेव्स और इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो इफ यू वांट to study further or do some work in this field, then you have to study oceanography and you will be called a marine scientist. Okay, पर ऑल दी फील्ड्स है ना, बायोलॉजिकल, अगर आपको मरीन लाइफ के बारे में पढ़ना है, या सी के सॉल्ट्स, मिनरल्स, या डिफरेंट रिएक्शंस जो सी में होते हैं, या फिर सी के अंदर जो माउंटेन्स होती हैं, प्लेट्यूज होते हैं, या सी बेड है, इसके बारे में पढ़ना है, या फिर टाइड्स, या इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है. अगर आपको इन सब चीजों के बारे में आगे पढ़ना है तो यू विल हैव टू बी वेरी गुड, और यू विल हैव टू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड फिजिक्स. ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे. Then only आगे you can study about this thing as a career if you want to make a career in this. Okay, anybody in the class is interested in studying about this future में कभी भी, or find this very intriguing and want to study this further, or to be called a marine scientist? Okay, I can see 3 thumbs up and I can see 1 thumbs down. Sakshi doesn't want to study this, but Saragni, Satpreet, and Rohan, Manjushri seems to be interested. Hari Vittal, great. Faizan, okay. Govind. So very good. This is a very interesting subject. Okay, it can be difficult, it can be confusing, but yeah, very very intriguing subject. Okay, so if you want to study this further, then pay attention here. Even if you don't want to study further, this is a natural phenomena, and I'm sure you must be interested in knowing more about it. ठीक है. So what we'll do now is I will show you some images. कुछ photos दिखाऊंगी मैं before and after high tides, है ना. high tides और low tides के time पे कुछ जगहों की images I will show you. I'll share the screen. You type on the chat box when what is it? Is it the time of high tide or is it a time of low tide? ठीक है. You'll be able to identify better. Just a second now. Can you see my screen, Shruti? Yeah. Okay. This is a place in Philippines. Philippines is a country. ठीक है. Same place की 2 photos हैं. This is the place when there is low tide, and same place looks like this when there is high tide. तो एक ही जगह है, पर जब लो टाइड होती है, मतलब जब पानी कम होता है या पीछे चला जाता है समुद्र में, तो वो जगह ऐसी दिखती है. बट जब हाई टाइड होती है, जब पानी आता है समुद्र के तट के पास आगे, तो यही जगह, सेम जगह ऐसी दिखने लगती है, राइट. सो दिस इज अ प्लेस इन फिलीपींस. सिमिलरली देयर इज दिस टेम्पल इन इंडिया, उसमें भी ऐसे ही है. व्हेन देयर इज लो टाइड तो टेम्पल ऐसा दिखता है, बट जब हाई टाइड होता है तो उस टेम्पल पानी पूरा आगे आ जाता है एंड द टेम्पल गेट्स कवर्ड हियर, राइट. तो एक ही जगह during two times. This is a place in France during low tide, during high tide. ठीक है, पानी आगे की तरफ आ गया, पानी पीछे की तरफ चला गया. एंड जैसे हमने कल पढ़ा था, द साइकिल ऑफ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ टाइड इज 12 hours 25 minutes. तो हर 12.5 घंटे के अराउंड
ये जगह ऐसी हो जाती है एक बार और एक बार ऐसी हो जाती है, राइट? दिस इज सम माउंटेन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग लो टाइड, ड्यूरिंग हाई टाइड। कोई भी समुद्र होगा उसके पास जाओगे देखोगे तो रात की तरफ, रात के टाइम पे देयर इज जनरली हाई टाइड, रात की तरफ, इसीलिए समुद्र के पास जाने मना करते हैं क्योंकि पानी आगे की तरफ आता है, ठीक है? दिस इज this place, see, this is low tide, this is high tide, this is a place in England. Same, there is loading issue, this last image we will see. This is a plane in this is a place in Japan, ठीक है? This is during low tide, you can see ऐसा road दिख रहा है, and during high tide, ठीक है? So these were some images for you to identify कि एक ही जगह पे लो टाइड और हाई टाइड में कैसा दिखता है, राइट? और ऐसा नहीं है कि कुछ ही जगह है, जनरली ऑलमोस्ट जहाँ पे भी देयर इज एन ओशन, देयर इज कोस्ट ऑफ द ओशन, वहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड होती है, आती ही है, देयर इज अ साइकिल दैट हैपेंस। ओके, सो टुडे इन द क्लास वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो टाइड्स हैं ये क्यों आती हैं, राइट? कैसे आती हैं और क्यों होता है ये, ओके? Now, before I proceed with that further, I yesterday gave you some activities. How many of you did perform any of the activity that I gave you to perform? कल मैंने 5 activities दी थी and I told you to take out like 5 minutes to just try any of the activity. Very, very simple. I know Rohan did and Shruti did. Okay. And anybody else? Okay, Krishna says he did. ठीक है, what activity did you do and what did you observe in the activity? You will tell one by one. Okay, yes Rohan, you start. Yes, Didi, I do third activity. In third activity, I take one glass, then I fill half water in the glass, then I take one spoon and घुमाने को क्या बोलते हैं? Drill in the water, then I see water is घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था, राइट? तो Yes. कभी भी पानी अगर आपने कभी भी देखा भी होगा, नहीं भी किया हो, तो एक ग्लास में इफ यू फिल वाटर, एक चम्मच लो एंड उसको तेज से घुमाओगे तो यू कैन सी द वाटर स्टार्ट्स मूविंग राउंड राउंड, ठीक है? नाउ रोहन, व्हेन यू वर ऑब्जर्विंग, डिड यू सी कि कहीं वाटर लेवल में कुछ चेंजेस आ रहे थे, कहीं पानी ज्यादा था, कहीं कम था, ऐसा कुछ चेंज दिख रहा था क्या? वाटर वॉज कम अप, वाटर कभी ऊपर आता था, कभी नीचे जाता था, राइट? यस, राइट। तो अगर आपने कभी भी पानी को ऐसे चम्मच से घुमाया हो या हाथ से पकड़ के ही अगर आप कभी घूमे हो पानी को लेके, तो जब आप देखोगे तो वाटर विल राउंड एंड राउंड ऐसे घूमेगा गोल गोल, प्लस यू कैन सी कि कहीं वाटर बढ़ता है, कहीं वाटर कम हो जाता है, राइट? एनीबडी एल्स हु परफॉर्म्ड एनी अदर एक्टिविटी? यस श्रुति? Didi, Didi, I do the fourth activity. In that I see, I take a half of glass water, and then I slowly move the water, and it like tide, low tide. How low tide come na? Like that it was happening, and I do faster than it was high tide. Like that was. ओके, सो श्रुति सेज कि जब वो तेज कर रही थी, तेज घुमा रही थी, तो पानी ज्यादा ऊपर की तरफ हो रहा था, जब वो धीरे घुमा रही थी तो इट फेल्ट लाइक हैविंग अ लो टाइड। ओके, मतलब पानी कम था। ओके, एनीबडी एल्स हु वुड वांट टू टेल? यस मंजुश्री? Yes, Didi. I do for that all activity, but I want to tell one activity. I on fan and I take in one glass. I take water and Didi, I when fan gets started ना दीदी, then in that water दीदी जो पानी था वो जो ऐसे थोड़ा थोड़ा से साइड में हो रहा था और थोड़ा थोड़ा से हिल भी रहा था, मतलब There was movement in water. Yes. पानी easily move होता है, ठीक है? अगर पानी कहीं भरा हुआ है और बहुत तेज फोर्स अप्लाई करेंगे या बहुत तेज हवा भी है, तो हम सब देख सकते हैं कि वाटर बहुत क्विकली मूव कर सकता है, राइट? अगर तेज हवा होगी तो पानी अगर कहीं होगा तो ऊपर वाला जो सरफेस है
एटलीस्ट उसमें कुछ मूवमेंट आपको दिख जाएगा। या आप एक ग्लास लिए हो और उसको थोड़ा सा भी टिल्ट करोगे तो पानी भी उसके साथ टिल्ट करेगा। तो इस चीज से तो हम सब एग्री कर सकते हैं कि वाटर जो है या जो फ्लूइड होते हैं या जो लिक्विड होता है वो जल्दी मूव करता है, राइट। हमेशा कहीं कोई लिक्विड होगा तो वो बहुत जल्दी मूव करता है या बहुत जल्दी पोजीशंस अपनी चेंज करता है। सो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इज वेरी इजी, इट हैपेंस वेरी इजीली, ठीक है। Now, since most of you haven't done any of the activity as I told you, and it was quite expected also, because you had an exam. So what we will quickly do is कि हम सब ये एक एक्टिविटी अभी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक पत्थर, we need Look at this one activity. stone, ठीक है। Okay, I had to show this to you. We need one stone and we need a string. String could be any धागा or anything that you have around 1 meter लंबा, ठीक है। और पत्थर को उस धागे से we will tie a knot, इस तरीके से ऐसे बांधेंगे, right? So we'll all take 5 minutes, prepare this sling and we will all bring it to the classroom, ठीक है। बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, पत्थर या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो आप फंसा सकते हो एक धागे में या बांध सकते हो, वो you can go and find and tie it to one thread or anything that you have, wool or thread, and bring it, okay. I will take 5 minutes to make the arrangements. I will also pause recording. Be very careful if you have the stone, ठीक है। Ensure that किसी को लगे नहीं, okay. And if you have the keychain, that then it is very simple. सिर्फ उंगली में ऐसे keychain फंसाना है and उसको गोल गोल घुमाना है। जिसके पास पत्थर है दूर होके राउंड सर्कुलर में पत्थर को ऐसे स्लिंग करना है, ओके। घुमाओ, ठीक है। ऐसे रोहन अपने से दूर रखो और स्लिंग को ऐसे घुमाओ, ऐसे शक्तिमान वाला ऐसे होता था ना, हाँ ऐसे, जस्ट मूव इट अराउंड। दूर रखो श्रुति अपने से दूर पत्थर को और गोल सर्कुलर घुमाना है। आई विल शो यू इन द वीडियो एज वेल कि कैसे घुमाना है, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन. All of us has to do this. If you have the keychain, move the keychain. If you don't have the keychain, move the stone. Krishna is like, मैं तो बाहर से कर रहा हूँ, that's good. Students tie a small piece of stone with a string about 1 meter long. कैसे करना है? Hold the string tightly in your hand and rotate it. ठीक है, गॉट इट। ऐसे हाथ में पकड़ो स्ट्रिंग को ऊपर और ऊपर से घुमाओ उसको, ठीक है। ऊपर से घुमाओ, श्रुति आगे मत रखो, ऊपर करो पत्थर एंड ट्राई टू मूव इट लाइक दिस, ओके। कृष्णा इज ट्राइंग टू डू, हाँ देखो सतप्रीत इज लाइक अ प्रो, ऐसे आराम से शी इज डूइंग इट। सलेहा डू इट, all of us will do it, ठीक है। Govind, I can see you are doing it, okay. Those who are having the keychain, राउंड में घुमाओ कीचेन को ऐसे, ठीक है। नाउ कीचेन वालों को हो सकता है कि इतना क्लियरली नहीं पता चले, बट स्टिल जो जिनके पास स्टोन है, बिकॉज स्टोन हैज वेट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो बहुत केयरफुली व्हेन यू आर मूविंग, एक्चुअली सी कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे क्या करने से स्टोन मूव कर रहा है, ठीक है। डू इट फॉर गुड 1 मिनट, ठीक है। ट्राई एंड डू इट, तेज करने की कोशिश करो, धीरे करने की कोशिश करो, ट्राई टू डू इट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तेज, बहुत तेज घुमाने की कोशिश करो। ऑब्जर्व द स्टोन, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग दिस, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ ओके, गोविंद इज डूइंग वेरी 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 फास्ट। सुमित इज लाइक विष्णु जी की तरह ऐसे चक्र घुमा रहा है, ओके गुड। ओके मोहम्मद, यस। हाथ मत घुमाओ, हाथ को स्टडी रखो, सिर्फ फिस्ट घुमाने की कोशिश करो, ऐसे घुमाने की कोशिश करो। सतप्रीत एकदम बहुत ही सही से कर रही है, सतप्रीत नोज इट हाउ टू डू, ओके ठीक है। नाउ ऑब्जर्व एंड ट्राई टू सी कि स्टोन के साथ स्टोन कहाँ जा रहा है। स्पीड स्लो करने पे स्टोन कहाँ है, स्पीड फास्ट करने पे कैसे घूम रहा है। what can you feel in your hands when the stone is moving. Try to find out these things. जिसके पास कीचेन है, अगर कीचेन में कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, सो व्हेन यू आर मूविंग द कीचेन बहुत तेज, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। मोहम्मद थोड़ा तेज करो और सर के ऊपर से घुमाने की कोशिश करो, सर के ऊपर से, ओके। आई एम गिविंग यू अ मिनट
try and experimenting this in your way, in whatever way you want to move it. And then there will be some questions that I'll be asking you. You will share your observations. ठीक है, very very simple. Please किसी को मारना नहीं, okay? Ensure किसी को लगे नहीं, okay? Okay. Yes, Shruti and Krishna, I'll take your response as well. Didi, we cannot take small stone. You can take small stone, no problem in taking small stones. Just do it for understand के what is happening. Be very good. बच्चे को मार मत देना. Okay. Yes, Krishna. Didi, when I'm doing it in speed, it is coming above, and when I'm doing it slow, it is going downside. Okay. ठीक है. So कृष्णा एज एन ऑब्जर्वेशन, जब वो स्पीड में कर रहा है तो वो ऊंचा जा रहा है, और जब वो धीरे कर रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है. ओके. यस विवेक, योर ऑब्जर्वेशन. दीदी आज पेपर है क्या? नहीं बेटा पेपर हो चुका 1:45 इंग्लिश का. हाउ Right. And did you give the SST paper? यस What is your score? Okay, just I also went away with the flow. Vivek, please type on the chat box. We are discussing the observations right now. Yes, Karthik, you've raised your hand. दीदी the weight of going जो है ना stone and the thread, जब हम उसे फास्ट घुमाते हैं तो एक कैच एयर कैच करता है, जैसे गोल गोल घूमते तो होता है तो कॉम्बिनेशन, उससे वो ऊपर जाता है. जब हम स्लो घुमाते हैं तो उसकी पावर कम हो जाती है, जैसे कुछ कम फीलिंग होता है तो नीचे आता है. Right. So there is some force. कुछ फोर्स एक्ट करता है. अगर फोर्स ज्यादा होता है तो वो तेज गोल गोल घूमता है. फोर्स कम होता है तो फिर it slows down and starts coming downwards, is what Karthik is suggesting. Any other observations that we have? Yes, Ashwini. Didi, my same observation that Krishna said. Okay. Same. Satpreet. Didi, that Ashwini said. सेम. मतलब सबका कहना ये है कि देयर इज अ फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन इट, और जब बहुत ज्यादा फोर्स हम लगाते हैं तो तेज घूमता है, ऊपर की तरफ जाता है. जब हम फोर्स कम कर देते हैं तो नीचे की तरफ आता है. ठीक है, ग्रेट. नाउ टेल मी, व्हेन यू आर मूविंग दिस, तो क्या तुम्हारे हैंड पे कोई फोर्स तुम्हें फील होता है? डू यू फील एनी फोर्स व्हेन यू आर मूविंग द स्टोन? Do one thing, try just moving your hand ऐसे ही, and then try moving your hand with the stone. एक बार stone के साथ करो और एक बार बिना stone के करो. And then tell me, do you experience any force in your hands? Yes or no? Type on the chat box, okay? एक बार बिना किसी चीज के हाथ ऐसे ही घुमाओ और एक बार stone लेके हाथ घुमाओ. ठीक है? Do you experience any force, any pressure in your hands? किस केस में ज्यादा है, किस केस में कम है, दोनों केस में है भी या नहीं है? ओके. यस मंजुश्री. Yes, Didi. When my hand in my hand there is stone ना दीदी, then my hand gets, मतलब दीदी कुछ ऐसा जड़ होता है दीदी. Okay. और जब वो हाथ में नहीं होता है तो ये नहीं होता है, ऐसे कैसे होता है? कम फोर्स लगता है. हाँ, कम force होता है. रोहन प्लीज आई टोल्ड यू बी वेरी केयरफुल. ज्यादा तेज लग गया? ठीक है. ट्राई सम फर्स्ट एड इफ यू वांट टू. ऐसे कट मत कर लेना अपना हाथ, प्लीज 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 बी वेरी केयरफुल. ओके, ठीक है. ओके, एनीबडी एल्स हैज एनी अदर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फोर्स ऑन योर हैंड्स पे कैसा फील होता है? गोविंद, यू टेल मी, हाउ डिड यू फील इफ यू डू इट विदाउट द स्टोन एंड व्हेन यू डू इट विद द स्टोन? दीदी स्टोन था उसमें, मैं घुमा रहा हूँ तो भारी लग रहा है और बहुत ये लग रहा है. हैवी लगता है. जब स्टोन होता है तो हैवी लगता है, और स्टोन नहीं होता तो नहीं लगता. अच्छा, अब ठीक है. नाउ एक बार और रोहन तुम मत करना बिकॉज यू हैव कट योर हैंड. दोज हुज हैंड्स आर ऑल गुड एंड कैन बी वेरी केयरफुल, डू इट वंस अगेन. एंड दिस टाइम व्हेन यू डू इट, ट्राई टू फील कि वेयर इज द स्टोन गोइंग. ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग कि तेज करने पे ऊपर हो रहा है, स्लो करने पे नीचे, दैट हैपेंस. बट व्हेन यू आर मूविंग इट बहुत स्पीड में, और एकदम से अगर तुम
मूव एकदम से अगर धागा खुल जाए और स्टोन को कहीं जाना हो तो स्टोन किस तरफ जाएगा? अगर गोल घुमा रहे हो, धागा खुल जाए, ठीक है, धागा खुल गया या टूट गया तो स्टोन कहाँ जाएगा? इमेजिन, थिंक ऑफ इट एंड टेल मी व्हाट विल हैपन देन। अगर धागा टूट जाए या खुल जाए और जो स्टोन गोल गोल घूम रहा था तो उस टाइम पे स्टोन कहाँ चला जाएगा? यस सलेहा। दीदी जिस डायरेक्शन में हमने स्टॉप किया था खुलते टाइम, जहां पे स्टॉप हुआ था उस डायरेक्शन में अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ जाएगा? बाहर। बाहर की तरफ जाएगा। तो सलेहा सेज कि अगर हम बहुत तेज घुमा रहे हैं स्टोन को, स्टोन का धागा खुल जाए या धागा टूट जाए तो पत्थर बाहर की तरफ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ अस एग्री टू दिस ऑब्जर्वेशन? कितनों को लगता है कि स्टोन बाहर की तरफ जाएगा? व्हाट अबाउट अदर्स? श्रावणी, अश्विनी, हरिविठल, माऊ, फैजान, यश, केदार, व्हाट डू यू फील? स्टोन बाहर की तरफ जाएगा, स्टोन अंदर की तरफ आएगा, कहाँ जाएगा? Okay. Is there anybody in the class who thinks कि stone अंदर की तरफ आएगा? Yes, Ashwini and Mohammed. Yes, Ashwini बोलो। Unmute yourself and speak. Okay, Mohammed बोलो। दीदी I don't do off thread. दीदी I don't do off thread, but I think it will become like that only. अच्छा, बाहर If की तरफ। the stone is heavy. ठीक है, stone is दीदी heavy. can I tell? Yes, Mohammed tell. दीदी अपन जिस डायरेक्शन में उसको घुमाएंगे ना दीदी, तो दीदी वो उस डायरेक्शन में उड़ के चल जाएगा बहुत तेजी से। उड़ के चला जाएगा एकदम बहुत तेजी से, बाहर की तरफ उड़ के चला जाएगा पत्थर, राइट? तो बेसिकली यही होता है। ओके, ग्रेट, गुड ऑब्जर्वेशन। नाउ इमेजिन यू ऑल आर सिटिंग इन अ बस। बस में सब बैठे हैं, ऑल ऑफ अस हैव बीन इन अ बस। सब लोग बस में बैठे होंगे पहले, ठीक है, राइट? इज देयर एनीबडी जो कभी बस में नहीं बैठा? इज देयर एनीबडी जो कभी भी बस में नहीं बैठा? रेज योर हैंड। राइट, सब बस में बैठे हैं, राइट? नाउ जब हम बस में बैठे होते हैं और बस चल रही होती है और अगर कोई घुमावदार रास्ता आता है या फिर कोई कर्व आता है, ठीक है, जब कर्व आता है तो बस ऐसे चल रही है, फिर बस ऐसे मूव होती है। तो जब हम बस के अंदर बैठे होते हैं तो हम किस डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हैं? व्हाट हैपेंस टू अस? क्या हम सीधे बैठे रहते हैं जब बस ऐसे घूम के चल रही होती है कि हमारे साथ कुछ होता है? व्हाट हैपेंस टू अस व्हेन द बस मूव्स अलोंग अ कर्व? यस फिजा। दीदी जिस डायरेक्शन में बस जाती है उसी डायरेक्शन में हम मूव होते हैं। ओके, सो फिजा सेज कि अगर बस ऐसे मूव हो रही है कर्व में और बस जिस डायरेक्शन में जा रही है हम उसी डायरेक्शन में मूव होते हैं। इज देयर एनी अदर ऑब्जर्वेशन टू दिस? यस मंजुश्री। यस दीदी, अगर बस थोड़ी सी स्लो में अगर पहले भी आराम से चल रही है और फिर थोड़ी सी मूव होती है तो हम थोड़ा सा मूव होते हैं। अगर वो स्पीड से चल रही है और डायरेक्टली मूव होती है तो हम डायरेक्टली ऐसे मूव हो जाते हैं दीदी। तो अच्छे से सोचो, क्या हम बस के साथ बस के डायरेक्शन में मूव होते हैं कि बस के अपोजिट मूव होते हैं? थिंक ऑफ इट केयरफुली। जब बस गोल घूमती है तो बस जब ऐसे चल रही है और गोल घूम रही है तो अंदर की तरफ बस जा रही है, तो क्या हम भी अंदर की तरफ झुकते हैं कि बाहर की तरफ झुकते हैं? कैसा होता है हमारे साथ? यस सतप्रीत। दीदी अपोजिट साइड। Okay, Satpreet says opposite side. How many of you agree कि हम opposite side move होते हैं अगर बस अंदर की तरफ जा रही होती है या कर्व में जा रही होती है? Okay, Sakshi. Okay, yes, Govind. You have raised your hand. Yes, दीदी, no. No मतलब? Okay, I didn't get you, Govind. But it's okay. Yeah, Shruti. दीदी जब ना एक से बस जाती ना तब वो हमें ना इस तरफ चलती। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी हम बस में बैठेंगे, नेक्स्ट टाइम कभी भी जब हम बस में बैठेंगे तो पूरी जर्नी में वी विल ट्राई एंड ऑब्जर्व
कि एक तो जब बस रुकती है, अचानक से ब्रेक लगता है, तो हमारा मूवमेंट कैसा होता है। दूसरा, अगर बस मुड़ती है, गोल सर्कुलर पाथ में कभी चल रही होती है, तो हम किस तरफ जाते हैं, हम लेफ्ट बस के साथ बस की तरफ जाते हैं कि बस के अपोजिट जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी बस में बैठोगे ये चीज ऑब्जर्व करना। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, कभी भी ऐसे सर्कुलर पाथ में साइकिल चलाइए। हाउ मेनी ऑफ यू राइड अ साइकिल, साइकिल किसने चलाई है, हाउ मेनी ऑफ यू राइड अ साइकिल, गिव मी अ थम्स अप और हैंड रेस। फैजान, श्रावणी, पल्लवी, हरिविठल, यश, केदार, साक्षी, गोविंद, मोहम्मद, साइकिल चलाई है कभी भी। ठीक है, नाउ कभी भी सर्कुलर पाथ में साइकिल चलाई है, तो जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो ट्रैक अगर घूमता है तो हमारा क्या पोजीशन होता है, जब ट्रैक घूमता है तो हमारा क्या पोजीशन होता है और क्यों हम ऐसा करते हैं। यस कृष्णा। If the track is circle and we are moving in right direction, then we will go inside of it, and like that only we do, like left side we will do go in right inside only. This happened because our cycle is little bit of tilted while the circle. राइट, और अगर हम साइकिल के साथ नहीं झुकेंगे तो फिर क्या होगा, so then we will fall हम गिर जाएंगे। ठीक है, or we will go out of the track. अच्छा ठीक है, ओके। सो कृष्णा सेज कि अगर हम सर्कुलर साइकिल चला रहे हैं, गोलाई में घूमेंगे, तो हम साइकिल के साथ झुकते हैं, राइट, हम भी झुक जाते हैं अगर हमारी साइकिल टर्न होती है। हम जनरली ऐसा करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, साइकिल को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ये सारी चीजें देखें, सर्कुलर अगर पत्थर सर्कल में घूम रहा था, या हमारी केचेन सर्कल में घूम रही थी, या जब बस सर्कुलर मोशन में है, या फिर जब हम साइकिल सर्कुलर मोशन में चलाते हैं, तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं या जो चीजें होती हैं, दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब हम सीधे चल रहे होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सर्कुलर मोशन के टाइम पे देयर आर मेनी डिफरेंट फोर्सेस दैट कम्स इनटू प्ले। ठीक है, जब हम पत्थर गोल गोल घुमाते हैं, तो जैसे आप सबने कहा कि देयर इज सम प्रेशर दैट यू फील इन योर हैंड्स एज वेल। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम सर्कल में पत्थर घुमा रहे हैं तो पत्थर पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। एक वो फोर्स होता है जो हम अपने हाथों से उसको देते हैं, राइट, हम उसको घुमा रहे हैं इन द सर्कुलर डायरेक्शन, हम जितना ज्यादा तेज घुमाएंगे वो उतना ज्यादा तेज घूमता जाएगा। सो देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द सर्कल बिकॉज वी आर मूविंग आवर हैंड्स in a particular direction with a particular speed, right? Now there is one force that acts on the stone that you all said कि जब stone को अगर जाना होगा, टूट जाएगा धागा, तो वो बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, so there is this force that is acting on the stone which goes outwards, जो बाहर की तरफ एक्ट करता है और उस पत्थर को वो बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, so there are two forces that act on the body. एक फोर्स अंदर की तरफ उसको खींचता है, ठीक है, और एक फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ फेंकना चाहता है। ठीक है, ये जो दो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस के नाम है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स जो किसी भी बॉडी को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स जो किसी भी बॉडी को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है या बाहर की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन। ठीक है, वी कैन एक्सपीरियंस बोथ द फोर्स, वी कैन एक्सपीरियंस, जैसे फिजा घुमा रही है तो इनवर्ड वाला फोर्स जो है वो पत्थर को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पर पत्थर खुद बाहर की तरफ जाना चाहता है, राइट? So there is a pressure that you feel in your hand. That is the inward force that is acting, and that is centripetal force. What is that force? Centripetal force. ठीक है, but जैसे कि हमने कहा पत्थर बाहर की तरफ जाएगा अगर रुक जाता है या टूट जाता है, तो that will happen because one force is acting on outwards, that is the centrifugal force. Centrifugal force. ठीक है, so remember centrifugal force बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ रखता है। ठीक है, सो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो ये दो फोर्सेस प्ले करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वील डू इज वील कंप्लीट द वीडियो ऑफ द एक्टिविटी दैट वी वर वाचिंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बेटर। ठीक है,
and I will ask after watching the video how much you understood. Okay? So watch it very carefully. What do you feel? Do you have to apply the force? Does the stone try to pull your hand away? Your hand should exert a continuous force on the stone to maintain the rotation of the stone in the same circle. This force, which is exerted by the hand on pulling stone towards the center, is centripetal force. Hence, when a body moves in a circular path, the force which acts towards the center is called centripetal force. You will also observe that the stone is exerting a force which tries to pull itself away from the center of the circle, that is, away from your hand. This force is the centrifugal force. Similarly, when a body moves in a circular path, the force that acts away from the center is called centrifugal force. While cycling in a bend or a curved path, a cyclist experiences a centripetal force, due to which the cyclist bends inwards. When a bus is moving in the bends, the passengers experience centrifugal force. Due to this force, the passengers bend away from the center of a turn or curve. Okay, so the scenarios that we were discussing, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं कर्व पाथ में, तो जो हम अंदर की तरफ झुकते हैं, that is because we experience a centripetal force. पर जब हम बस में बैठते हैं और बस जब जा रही होती है सर्कुलर पाथ में, तो क्या होता है, बस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देयर आर 4 व्हील्स, इट इज अ बैलेंस्ड प्लेस. तो क्या होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और हम बाहर की तरफ जाते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. पर जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, देयर आर 2 व्हील्स, वी हैव टू बैलेंस द साइकिल. तो हम टू बैलेंस द फ्रिक्शन दैट इज बीइंग ऑफर्ड, हम क्या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. Now why do we need to understand these two forces is because we know that the earth rotates and the earth revolves. तो जब अर्थ रोटेट करती है और जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो देयर इज अ सर्कुलर मोशन. और जब सर्कुलर मोशन होता है तो ये दो फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. एंड देयरफॉर वी आर स्टडीइंग सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. ठीक है. Now before we move any further, how many of us understood what is centripetal and what is centrifugal force? Give me from 0 to 5 your understanding of centripetal and centrifugal force. Type your response on the chat box. 0 मतलब नहीं समझ आया, 3 मतलब थोड़ा बहुत समझ आया, and 5 मतलब I am very clear of what is a centripetal and centrifugal force. ठीक है. Okay. It is okay if you are at a 0, 2, 1, that's all okay. ठीक है. But where are you? And I need to know that. Okay. There seems to be like okayish understanding. A lot of you are at a 4, a 3 or 4, and that is okay. ठीक है. अभी के लिए if you did not understand, just try to एकदम सिंपल वर्ड्स में ऐसे याद रखने की कोशिश करो कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, सलेहा हियर. ठीक है. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो दो फोर्सेस एक्ट करते हैं. एक उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स. और एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है या खींचता है या सेंटर से दूर लेके जाना चाहता है, दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है. सो इनवर्ड वाला फोर्स इज सेंट्रीपेटल, आउटवर्ड्स वाला फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है. सो जस्ट इन केस यू कुड नॉट अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस इट बाय योरसेल्फ इन द एक्टिविटी, just try to remember it in this way. ठीक है. So based on whatever we discussed in the class today, there are a few things that we can all agree on. ठीक है. पहली बात,
तो जो लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है वो इजीली और फास्टर मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे हमने वो ग्लास में पानी भर के अगर हम देखेंगे तो हम जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे उस डायरेक्शन में इजीली लिक्विड मूव करता है बहुत आसानी से, ठीक है। देयर इज अ बल्ज, अगर हम वाटर को मूव करते हैं तो एक किसी डायरेक्शन में देयर इज राइज ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज बल्ज। बल्ज मतलब उफान, ठीक है, उफान। सो देयर इज अ बल्ज, किसी एक डायरेक्शन में पानी ज्यादा होता है, दूसरे डायरेक्शन में कम होता है। जब सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी होती है तो दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, इनवर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, आउटवर्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। वी नो इन द सोलर सिस्टम सन जो है वो बहुत बड़ा है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सारे प्लैनेट्स के अराउंड उनके खुद के मून हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सो वेरी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट इज कि हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट्स के अराउंड छोटे ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सन के अराउंड बाकी सब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं क्योंकि सन सबसे बड़ा है, प्लैनेट्स उससे छोटे हैं, और जो मून है, प्लैनेट्स के जो मून होते हैं वो उनसे भी छोटे होते हैं। तो हमेशा बड़ा ऑब्जेक्ट के अराउंड ही छोटा ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है इसीलिए उसने सोलर सिस्टम को अपने से बांध के रखा है, राइट। बिकॉज देयर इज ग्रेविटी, देयरफॉर वी ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन। देयर इज ग्रेविटी ऑन अर्थ, देयरफॉर वी आर ऑल ग्राउंडेड, हम उड़ नहीं रहे हैं, राइट। देयर इज ऑल्सो ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है। तो सभी बॉडीज की अपनी अपनी ग्रेविटी भी है जो ऑब्जेक्ट्स को अपने पास खींचती है, राइट। सो दिस इज वन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ओके, नाउ एज आई सेड कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है गोल गोल, एंड इट ऑल्सो रिवॉल्व्स, तो वहां पे भी सर्कुलर मोशन है। तो जब भी अर्थ का रोटेशन या रिवॉल्यूशन होता है तब भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का अपना एक रोल होता है, ठीक है। ऑल्सो लास्ट टू फैक्ट्स टू बी नोन इज कि जैसे मैंने कहा मून का, सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर हमें पता है कि मून अर्थ के पास है एज कंपेयर टू सन, सन काफी दूर है अर्थ से, ठीक है। तो भले ही मून छोटा है पर क्योंकि वो अर्थ के पास है इसीलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है अर्थ पर, ठीक है। इसीलिए उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का सिग्निफिकेंस है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिनोमेनाज ऑन अर्थ, ठीक है। आर वी क्लियर विद दीज ऑब्जर्वेशंस एंड फैक्ट्स? डू वी अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें होती हैं? ऑल क्लियर? Yeah, okay. If we are all there still awake and not सोए नहीं है हम और हमें समझ में आ गया तो प्लीज गिव सम रिएक्शन। थैंक यू मंजुश्री, जानवी, कृष्णा, साक्षी, पल्लवी, प्रेम, हरि विठल, जानवी, फिजा, सतप्रीत, मोहम्मद, okay, सलेहा, okay, great. I did not get reaction from 3 of you, so I consider that I don't know what to consider. Anyways, so basically all this that we were discussing in the class today was important for you to understand कि why do actually tides occur, ठीक है। tides क्यों occur होती हैं ये समझने के लिए वो basic concepts clear करना जरूरी थे, and therefore we discussed all of them, ठीक है। now we will actually study कि क्यों हमारे अर्थ पे tides occur होती हैं, ठीक है। so we will watch another one video. now remember ऐसे जब हम छोटे होते हैं, जब हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में होते हैं तो हम जनरली ABCD पढ़ते हैं, राइट। फिर हम धीरे धीरे वर्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं, फिर वर्ड से सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो हमेशा जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम और कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं और फिर हम उसके बारे में और डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि तुम लोग टाइड्स पहली बार पढ़ रहे हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बस ऐसे बेसिक टर्म्स में समझा दी जाएंगी, राइट। बट जब बड़े होगे और इसको डिटेल में पढ़ोगे तब बहुत सारे फैक्टर्स और पता चलेंगे, ओके। सो फॉर नाउ जस्ट वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स एज टू व्हाट कॉजेस टाइड्स, ओके। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन, ओके। What causes tides?
If you've ever spent a day at the beach, you've probably noticed that the ocean water is constantly moving. Waves cause the ocean to move all day long, and tides cause the ocean to rise and fall twice each day. The water's highest point is called high tide. The water's lowest point is called low tide. Plants, animals, and humans living near the ocean rely on this predictable rising and falling of the ocean each day. But what exactly causes high tides and low tides? The moon. That's right. The moon is the main cause of tides in Earth's oceans. The moon and Earth both have gravity, the force by which a planet or other body draws objects toward its center. The force of gravity keeps all of the planets in orbit around the sun, and Earth's gravity keeps the moon in orbit around Earth. The moon is a smaller object than Earth, so its force of gravity is weaker. But since the moon is so close, the pull of its gravity is still significant. As the moon's gravity pulls on Earth's water, the water bulges in the direction of the moon. This is due to something called the tidal force. Because of this tidal force, Earth's water on the side of the moon always wants to bulge out toward the moon. This bulge is what we call a high tide. As your part of Earth rotates into this bulge of water, you might experience a high tide. That explains the first high tide each day, but what explains the second high tide? This is where things get a little tricky. As we mentioned earlier, when the moon's gravity pulls on one side of Earth, it creates a tidal bulge toward the moon. But the tidal force actually affects the whole planet, not just one side of Earth. The total effect of the tidal force is that Earth experiences a squeeze, which causes the water to bulge on two sides. These two bulges explain why in one day there are two high tides. Earth's surface rotates through each of the bulges once a day. As Earth's climate warms and oceans rise, high tides are becoming higher. Sometimes this leads to flooding in communities near the coasts. High tide flooding happens when tides are approximately 2 feet above the average high tide. This is when ocean water starts spilling onto streets or bubbling up from storm drains. Scientists use information from many sources, including NOAA's GOES-R series weather satellites, to study these high tide floods. Coastal communities can use this information to better plan for the effects of rising tides in the future. Find out more about Earth's. Okay. How many of us could actually understand any part of the video? And can one of you quickly summarize what did you understand from the video? Any one of you. You can like raise your hand if you want to explain what you understood from the video. Okay. Yes, Satpreet. Didi, I have a question. Okay. Wait for the question. Let me ask one of you to summarize what you understood from the video. Yes, Krishna. In the video I see that how does the moon means how does the water come up and go down. This happened because of the moon gravity. Moon pull the water by his gravity, then the water come up, but it cannot come too much of above, so it is that much high. Okay, right. Great observation. So Krishna understood from the video that tides जो आती हैं, वो जो bulge of water है, that is because of moon, the gravitational pull of the moon. तो moon की gravity अपनी तरफ पानी को खींचना चाहती है. We know कि because liquid can move very quickly, इसीलिए अगर moon की gravity पानी को अपने तरफ खींचेगी, तो liquid will move very quickly. तो जिस डायरेक्शन में जहां मून होता है, अगर फुल मून है, जहां मून है, तो उसका ग्रेविटी उतना ज्यादा एक्ट करेगा, और उस जगह पे जहां पे मून फुल दिखाई दे रहा है, उस जगह पर ये टाइडल फोर्स जो है वो ज्यादा एक्ट करेगा और वहां पे हाई टाइड होगा.
हाई टाइड मतलब ज्यादा पानी आगे की तरफ आएगा या ऊपर उठेगा, राइट? पर there was one another trick in the video. There was one other phenomena in the video which said, which also concurs with what we understood, right? कल हमने पढ़ा था कि 12 hours 25 minutes में एक साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब एक दिन में 2 बार हाई टाइड आएगी और 2 बार लो टाइड आएगी, ठीक है? तो एक बार हाई टाइड कब आएगी? जब मून होगा, वो तो समझ में आता है, राइट? क्योंकि मून रात में ही बस आएगा, 2 बार तो नहीं आता दिन में, एक ही बार आता है। तो एक बार तो समझ में आता है कि हाई टाइड क्यों होगा, पर दूसरे टाइम क्यों हाई टाइड होता है? डिड एनीबडी अंडरस्टूड व्हाई डज द सेकंड हाई टाइड या फिर सेकंड पार्ट ऑफ द जहां पे मून नहीं है वहां पे भी हाई टाइड कैसे आता है? एनीबडी अंडरस्टूड दैट? ओके, कृष्णा, वुड यू लाइक टू explain that? Yes, because the earth is sphere and the moon's gravity pull one side, so one side it is pulled and one side by its sphere it is pulled. Okay, so Krishna By the says sun. because of the shape of the earth, the spherical shape of the earth. Okay, now when I'm जब हम सिंपल सा समझने की कोशिश करेंगे तो एक रीजन टाइड का ये है बिकॉज द मून का ग्रेविटी पुल करता है, फाइन. The second reason is more connected to the forces that we just studied. ठीक है, हमें पता है कि अर्थ की खुद की ग्रेविटी है जो इनवर्ड्स की एक्ट करती है, बट क्योंकि अर्थ सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर मोशन. देयर इज वन मोर फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फोर्स दैट इज एक्टिंग? हु कैन टेल मी? What is the name of the force that would be acting on earth because it is revolving in a circular motion and rotating in a circular motion? Gravity तो है, उसके अलावा या श्रुति? श्रुति? Didi, I think that Imagine जो पत्थर है that is earth. Imagine the stone to be earth and it is revolving around the sun. ठीक है? Tell me which force will be acting. पत्थर घुमाया था. What was the force acting? Didi, there was a force like I was rotating the stone. It was it was very fast. Then I slow rotating. Then also it was fast. It was going. Okay, I am asking And, the name of it the force, was, Shruti. What will be the name of that force? I am asking you that. तुम मुझे बता रही हो what you observe, that is correct. Now tell me the name of the force. I told you दो forces act करते हैं जब कोई भी object circular motion में घूमता है, right? What are those forces? Outside. Right. Outside one will be acting, and what is the name of that force? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जैसे हमने देखा कि अर्थ क्योंकि घूम रहा है, इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, देयर इज वन अनदर फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द अर्थ व्हिच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो एक रीजन ऑफ टाइड हो गया बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मून. दूसरी तरफ जो टाइड आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द अर्थ, वन ऑफ व्हिच इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, so there are basically three major, let's Weather. move, yeah, there are just give me one moment. So there are three major reasons because of which tides occur on earth. First is the gravitational pull of the moon and the sun as well as the earth. जैसे अभी हमने समझा, there is gravity acting on all the three bodies. Second is revolution of the earth around the sun and the indirect revolution of moon around the sun. ठीक है, and the third is the centrifugal force generated due to the movement of the earth. ठीक है, अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, so there is gravity that is acting and then there is centrifugal force that is acting, and it is because of these three main reasons tides are occurred. But also understand कि tides का अर्थ पे आना is a very more complicated process. It is not that easy क्योंकि अर्थ सन मून तीनों मूव कर रहे होते हैं all the time, है ना? All the time all of them are moving और अर्थ तो रोटेट भी कर रहा होता है ना? So there are so many other factors that play a part, but the main causes of tides on earth are
First, the gravitational pull of sun, earth, moon. The centrifugal force that is generated due to the movement of the earth, and also the revolution of the earth around the sun and the indirect revolution of moon around the earth. Okay, so these are the three major reasons of tides being occurring. Now tomorrow in the class we will understand in detail different positions of moon and why those tide occur, and और डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे ये चीज हो रहा है. ठीक है, फॉर नाउ वी विल जस्ट लीव इट हियर बिकॉज आज के लिए आई नो काफी ज्यादा हो गया है. But before we end this, there is this thing that we will formally discuss, and these are the two major forces that act on earth: the centrifugal force and the gravitational force. I would want you all to note this down as well in your geography notebooks. Okay, also mention properly कि centripetal force क्या है, centrifugal force क्या है और किस direction में act करता है. ठीक है, can I request one of you to quickly read this for us? What is centrifugal force? Saleha, would you go ahead and read what is centrifugal force? Saleha. Yes, Didi. Due to its rotation, the earth gets a type of power or force. This force works away from the center. It is called centrifugal force. Right, ठीक है, because earth rotates. जैसे हम just imagine the way you were moving the stone, right? वो more of revolution है, but still think, imagine like earth is rotating. उस rotation, वो rotation भी circular है, right? उस rotation की वजह से earth को एक power मिलता है या एक force मिलता है which acts away from the center, जो बाहर की तरफ act करता है. This force is known as centrifugal force. Okay, can I ask, who do I ask? Faizan to quickly read what is gravitational force. Faizan. Faizan, Yes, Didi. read the gravitational force wala part. Gravity is a force of attraction that pull together all matter. Anything you can specify, Physically touch. the more matter something has, the greater the force of the gravity. That means really a big object like planets and stars having a stronger gravitational. Okay, thank you Faizan for reading it. Please do note this in your notebooks as well. Gravity क्या force होती है? Gravity is the force जो हमें attract करती है अर्थ की तरफ, right? So any two matters, किसी भी matter को एक दूसरे की तरफ attract करने वाला force जो है उसको gravity कहते हैं. ठीक है, जिस भी object में ज्यादा matter होगा उस object की gravity उतनी ज्यादा होगी. मतलब जितना बड़ा object है उतना ज्यादा उसका gravitational pull होगा. ठीक है, so if we talk about sun, moon and earth, क्योंकि sun सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा gravity sun की है, फिर अर्थ की होगी और सबसे कम ग्रेविटी मून की होगी. बट बिकॉज मून अर्थ के पास है इसीलिए मून की ग्रेविटी जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है और इसीलिए उसका पुल ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सन. ठीक है, सो दीज आर द टू मेन फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द अर्थ. अगर हम इन फोर्सेस को इमेज की तरह देखना चाहें देन वी कैन अंडरस्टैंड यूजिंग दीज इमेजेस. लेट मी स्पॉटलाइट एज वेल. सो दिस इज अर्थ. ठीक है, इफ यू कंसिडर दिस इज अर्थ, ऊपर से देख रहे हो अगर आप अर्थ को, टॉप व्यू, दिस इज द नॉर्थ पोल, राइट? तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है. ठीक है, ये जो एरोज आप दिख रहे हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो हर पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है. ठीक है, ये अगर आप अर्थ को टॉप व्यू से देखते हो. अगर नॉर्मली सामने से देखोगे, अगर सीधे देख रहे हो 3D में अर्थ को, तो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज समथिंग लाइक दिस इज एक्टिंग ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ग्रेविटी जो अर्थ की है वो अर्थ
अंदर की तरफ एक्ट करती है, नीचे की तरफ लेके आती है. इट इज अ डाउनवर्ड फोर्स, राइट, जो अंदर की तरफ सबको खींचती है. तो ग्रेविटी अंदर की तरफ एक्ट करता है फोर्स, बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसको काउंटर करता है और वो बाहर की तरफ एक्ट करता है. जस्ट रिमेंबर दैट द सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो उसका जो वैल्यू है इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसीलिए हम उड़ नहीं जाते हैं, राइट. ग्रेविटी हमें खींच के इसलिए रख पाता है ऑन द अर्थ बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, so this is how if we have to just draw it and understand. If you want you can quickly draw this in your notebook to understand कि कहाँ पे centrifugal force act करता है और कहाँ gravitational force. The most important for you to remember is this particular thing. Just note this particular part कि gravitational force inward force है, अंदर की तरफ लग रहा है, और centripetal force outward force है, बाहर की तरफ लग रहा है. ठीक है. I will also share images of these slides on the group, so don't worry if you could not complete your classwork, you can complete it later. ठीक है. Okay, this is already we have started. आगे का in detail we will be continuing in the class tomorrow. So all those who attended the class today, it would be easier for you to understand tomorrow. If not, then it would be a bit difficult. Okay. So that is why I asked you all to be in the class yesterday. कल कहा था ना मैंने कि आज की क्लास जरूर अटेंड करना, but seems like